Good morning, students. Today, our topic of discussion is the phases of teaching. You know that when a teacher has to teach in the class, then before going to the class, he or she has to do the planning. And after that, in the class, there is the interaction. And lastly, when the interaction has taken place, then the next and last phase comes, that is post-active phase. So now it's very necessary for a teacher to have a good teaching. Okay. Teaching is a dynamic, interactive process involving the teacher, student, and subject matter. There are the three poles. One is the teacher, another is student, and the matter which is to be transferred, that is content or subject matter. And the success of a teacher depends upon how successfully he or she has prepared the subject matter and what is the best way to transfer it from teacher to learner. That means its presentation. It goes beyond delivering content and testing. It includes guiding students through meaningful experience to achieve learning goals. Effective teaching requires systematic planning and action before, during, and after class. That means यहाँ पर तीन चीजें होगी। पहला, क्लास में जाने से पहले, दूसरा जब हम क्लास में हैं, और तीसरा जब टीचर क्लास को छोड़ता है। Philip Jackson 1966 categorized these into three phases: pre-active phase, interactive phase, and post-active phase. Pre-active phase, that is another name is planning stage, योजना का स्तर, और interactive phase of teaching, that is implementation stage, किस तरह से हम उसको अनुप्रयोग कर रहे हैं, and last one is that is the post-active phase. This phase is for, ये phase क्यों है? क्योंकि फीडबैक लेने के लिए, जिससे पता चले कि what are the desired objectives, those are obtained or not. Then the first phase comes pre-active phase of teaching. In this phase, teacher has to do some of the tasks before entering to class. What are those tasks? Lesson planning, identifying subject matter, learning objectives and strategies, and using teaching aids. ये क्लास में जाने से पहले बहुत आवश्यक है एक टीचर के लिए, उसको जानना क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, लेसन प्लान तैयार है या नहीं है, क्या टीचिंग मेथड्स यूज करेगा, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, और उसके पास क्या टीचिंग एड्स हैं। इसके अंतर्गत मेनली प्रीएक्टिव फेज के अंदर चार ऑपरेशंस आते हैं। फर्स्ट है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना, मेकिंग डिसीजन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिसीजन लेना, arrangement of ideas and style of teaching, and last and fourth is development of the teaching strategy. प्रीएक्टिव फेज में ये बहुत आवश्यक है कि हमने जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में डिसीजन लेना कि कितना हमने सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करना है, ये बहुत आवश्यक है। और कैसे करना है, व्हाट विल बी द मेथड एंड व्हाट टीचिंग एड्स अ टीचर विल यूज। और जहां तक बात आती है फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों के निर्धारण के लिए, तो यहां पर कुछ चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। वन इज मेंटल लेवल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ द लेसन एंड द क्लास। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये बहुत आवश्यक है कि क्लास कौन सी है, दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी, और सेकेंडरी में भी सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी क्लास 9 उसी हिसाब से हमने लेसन प्लान तैयार करना है। रिसोर्सेज अवेलेबल इन द क्लास, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, दैट इज द टीचिंग एड्स, टीचिंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, बुक्स, कॉपी, चॉक, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, और द प्रोजेक्टर, क्या वहां पर रिसोर्सेज हैं। एनवायरमेंट एंड इट्स एस्पिरेशंस, और सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द नेशन। Thus, in the pre-active phase of teaching, the teacher hypothesizes
हाइपोथेसिस करना, परिकल्पना करना, आउटकम्स डिसाइड ऑन टेक्स्ट बुक रीडिंग, ग्रुपिंग एंड performance notification, overseas teaching planning, include activities before the class. And it's very necessary to know what strategies and what method a teacher will use in the class. This is decided in pre-active phase of teaching. The middle and the second one is comes, that is interactive phase of teaching. Interactive phase, that means interaction is there between the teacher and taught using the books, teaching material, and action of the teacher, its gesture, each and everything what a teacher does in the classroom while he or she is presenting the subject matter. In this way, here, one is very necessary, sizing of the class. क्लास का साइज क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या आराम से जो है एक टीचर उनको देख सकता है, ठीक। और उसके बाद हु आर द स्टूडेंट हु विल कोऑपरेट विथ हिम ड्यूरिंग टीचिंग। क्लास में हमने देखा कई बच्चे अपने आप कुछ क्या कर रहे होते हैं, कोई गप्पे मार रहे होते, कोई दूसरा काम कर रहा होता है, कोई ध्यान ही नहीं देता। और कुछ टीचर के साथ जो है क्या करते हैं, उनके साथ इंगेज हो जाते हैं अच्छी तरह से कि टीचर क्या पढ़ा रहा और क्या रेस्पॉन्स देना है इन देयर एटिकेटेड मैनर। और इसी के अंदर आपका आएगा हु आर दोज हु विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर टीचर। यू नो दैट मैनी हैट्स मैनी टेल्स, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। बट टीचर को उसको क्या करना है, एक हेट्रोजीनस क्लास को होमोजीनस क्लास बनाने के लिए अपनी एबिलिटी, अपनी टीचिंग मेथड, यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये सब इंटरेक्टिव फेज में करना है। इसी का बी पार्ट है डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स। आफ्टर अ टीचर हैज assessed his student visually, the teacher gives special attention to the learning needs of the student so that he becomes aware of the individual different abilities, interests, attitude, needs, and entering behavior of the students. It is done with the help of direct question or on the content. पूर्ण लर्नर कैसे हैं, who are the, किसका लर्निंग बैक, कौन गिफ्टेड चिल्ड्रन है, कौन बैकवर्ड हैं, और कौन विजुअली जो है आपका या फिर ऑर्थोपेडिकली क्या है हैंडीकैप हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर माने रखती है। एंड सी इज ट्रीटमेंट गिवन टू द लर्नर when a teacher does some activities by asking questions or by showing some material aids in the class, students react to those stimuli leading to some responses from the teacher also. Reinforcement is one of the main thing here in interactive phase. Reinforcement, पुनर्बलन जिसे कहते हैं, पुनर्बलन, I think that you have learned in Thorndike's theory. पुनर्बलन, कोई न कोई चीज ऐसा है जिससे कारण को बच्चों को हाँ रेस्पॉन्स देने में इंटरेस्ट है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन गोज ऑन द क्लास अनबेटेडली। Thus, interactive phase of teaching include combines all activities of the teacher. टीचर की सारी एक्टिविटीज कंबाइन करना, क्या क्या है उसके अंदर, लेक्चरिंग, प्रोजेक्टिंग योर मैटेरियल, डेमोन्स्ट्रेशन, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, एंड कंबाइनिंग द स्टूडेंट विथ इंटरेक्शन। और उसके बाद आपका फोकस ऑन कंटेंट प्रेजेंटेशन डिलीवरी। कभी कभी एक टीचर क्या होता है, जब पढ़ा रहा होता है बहुत दूर चला जाता है सब्जेक्ट मैटर से। डोंट बीट अबाउट टू बुश, जो आपका कंटेंट मटेरियल आप उस पर जाइए, और यहाँ पर ये इंटरेक्शन फेज में बहुत आवश्यक है। एग्जीक्यूट टीचिंग प्लान थ्रू वेरियस मॉडल्स लाइक क्लासरूम, लैब, आउटडोर और लाइब्रेरी। प्रोवाइड्स लर्नर विद द verbal stimulation, explanation, questions and guidance. This phase involves class size, knowledge, interest, attitude, probing question, diagnosing learner, presenting stimuli, feedback, and reinforcement. And the last one is, that is post-active phase of teaching. Pre-active में क्या किया था हमने, कि जो पढ़ाना था, जो हमने प्रेजेंट करना था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए थे, उनको जो है तैयार, उनको ऑब्जेक्टिव्स को तय करना था।
इंटरेक्टिव फेज में हमने अपने सब्जेक्ट मैटर को जो है, टीचर ने सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करना है, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, ये सारी चीजें यूज करके। और लास्ट, दैट इज द पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इट इज a phase of evaluation and follow up of the operation at the pre-active and interactive phases। प्रीएक्टिव में हमने क्या क्या किया था, इंटरेक्टिव में हमने क्या किया, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, तय किए थे, क्या वो हमें प्राप्त हो गए? तो इसके लिए इवेल्युएशन किया जाता है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में। तो इसमें क्या है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द बिहेवियर। क्या बिहेवियर हमने तय किए थे, क्या वो हमें प्राप्त हुए? उसके बाद है यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स। हम कौन सी डिवाइस, कौन सी टेक्निक को जो है यूज करें डायग्नोस करने के लिए कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किए थे, फॉर्मुलेट किए थे, उनको हमने प्राप्त किया नहीं। देन देयर आर सो मेनी टूल्स। पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो गया, टीचर मेड टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड एटीट्यूड टेस्ट। वी कैन यूज ऑल दीज टू नो the evaluation of the matter, subject matter, content matter, what we have presented। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। हमें पता लग गया कि यहाँ पर इस तरह से ये चीजें हैं, इतना बच्चों की समझ में आया, इतना नहीं आया, इतने बच्चों के व्यवहार में चेंज आया है। तो इसके लिए हम अब कौन सी मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करें जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट हो। Then, teaching is a professional activity involving pre-active, interactive, and post-active phases. It promotes learning and student development involve planning, translating, content generating, motivation, and assessing understanding, objectives, and classroom environment. I think that only this topic is there today. The channel is the Educational and Spiritual Consciousness। यदि आपको हमारा ये अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।